ایک قبر سے آواز آ رہی تھی گدھے کی. کس کی آواز آ رہی تھی؟ گدھے کی. کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے کہاں ہے؟ جنت ہے. جو جھوٹ بول کر بھی کہاں جائے گی؟ جنت میں جائے گی. جھوٹ بول بول کر ماں جنت میں جائے گی. تو اس وقت بھی تم ایک حق ادا نہیں کرو گے. جانتے ہو کس چیز کے؟ جو والدین کے نافرمان ہیں. والدین کے کیا ہے؟ نافرمان ہے. والدین کی بات نہیں مانتا. والدین مطلب ماں باپ. ماں باپ کی بات نہیں مانتا. دیکھو دنیا کے اندر ہم لوگ آج پیدا ہوئے ہیں تو ماں باپ ہی کی وجہ سے ہماری وجود ہے. اگر ہمارے ماں باپ نہ ہوتے تو ہم یہاں دنیاوی اعتبار سے نہ ہوتا. اللہ تو دیکھو اسی طریقے سے دنیاوی اسباب کے تحت اللہ کے بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے والدین ہیں. سمجھ گئے؟ اور ہمارے والدین ہی کی بدولت ہم لوگ اس دنیا کے اندر وجود میں آئے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین میں سے ہر ایک کو راضی کر لو. ان الجنت تحت اقدام الامہات. کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے کہاں ہے؟ جنت ہے. سمجھ گئے؟ اب ایک لطیفہ سنا دے رہے ہیں ہنسنے ہنسانے کے لیے. اب ایک جگہ مولوی صاحب سے بیان کر رہے تھے. سمجھ گئے؟ کیا کر رہے تھے؟ بیان کر رہے تھے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. باپ جنت کے دروازہ ہے. تو اب ایک دیہاتی تھا بیچارہ تھوڑا سا کم عقل. تو وہ تھوڑا سا دوڑتے ہوئے آیا گھر. سمجھ گئے؟ کیا کیا؟ دوڑتے ہوئے گھر آیا. خدیجہ بدمعاشی مت کر بیٹھ آرام سے. تو وہ دوڑتے ہوئے آیا. دوڑتے ہوئے وہ آیا اور دوڑنے کے بعد آنے کے بعد اپنے گھر میں گیا. ماں اس کی جہاں پر قدم رکھی تھی, ماں اس کی کیا کی تھی؟ جہاں قدم رکھی تھی, جب قدم اٹھائی نا تو لگا وہیں پر کیا کرنے, کھرپی سے کداری سے کھودنے لگا کہ جنت کہاں ہے. تو اسے مٹی مل رہی تھی. اب پھر وہ دوڑے کہاں آیا؟ مولوی صاحب کے پاس آیا. کہ ارے مولوی صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ کہاں, آپ کیا کہہ رہے تھے کہ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے. جنت کہاں؟ وہ تو خالی مٹی نظر آ رہا ہے. تو مولوی صاحب اس کا کان پکڑ کر کے بیٹھ ادھر. تب اس کو سمجھایا کہ جنت کے مطلب یہ ہے کہ تم اگر ماں تم سے راضی رہے گی, باپ تم سے راضی رہے گا, ماں کے کہنا مانو گے, باپ کی بات مانو گے, ماں کے کہنے کے مطابق تم چلو گے, اور ماں مرتے دم تک اور باپ مرتے دم تک تم سے راضی رہیں گے, خوش رہیں گے, تو اللہ تمہیں جنت عطا فرما دیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما حق الوالدین, ماں حق الوالدین, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں اور باپ کا اولاد کے اوپر کیا حق ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ وہی تمہارے جنت ہے اور وہی تمہارے جہنم ہے. وہی تمہارے جنت ہے اور وہی تمہارے جہنم ہے. اگر تم ان کی خدمت کرو گے, اگر وہ تم سے راضی رہیں گے تو تم جنت کے حقدار بن جاؤ گے, اور اگر وہ تم سے ناراض رہے, ناخوش رہے, تو تم یہ جہنم کے مستحق بن جاؤ گے. والدین کی خوشی میں, ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے. اللہ اس وقت خوش ہوتے ہیں جب کیا کیا جاتا ہے؟ ماں اور باپ ہم سے خوش ہوتے ہیں. اور والدین کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے. اس لیے ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ ماں اور باپ کو ہم کیا کرے؟ خوش کرے. اچھا ایک دیکھو معراج, ایک وقت ایسا تھا, ایک وقت کیا تھا جی سمیہ, ایسا تھا کہ ہمارے پاس پاؤں تھا. ہم جب بچے تھے, سمجھ گئے, سابیہ سے بھی جب بہت چھوٹے تھے, 2 سال چھوٹا تھے, پیدا ہوئے تھے ہم, 6 مہینہ 8 مہینہ کے تھے, تو ناصر ہمارے پاس پیر تھا لیکن ہم چل نہیں سکتے تھے, ہاتھ تھا لیکن کوئی چیز اٹھا نہیں سکتے تھے, زبان تھی لیکن کوئی چیز چکھ نہیں سکتے تھے, منہ تھا لیکن کوئی بات بول نہیں سکتے تھے, ہے نا. سب کچھ رہتے ہوئے, ہر انگ رہتے ہوئے اور صحیح سلامت رہتے ہوئے مٹھی, پھر بھی کچھ ہم لوگ کر نہیں سکتے تھے. ماں اور باپ کے کیا تھے؟ محتاج تھے نا, محتاج. ماں اور باپ ہمیں بقیہ چلاتے تھے, ہاتھ پکڑ کر چلانا سکھاتے تھے. تو اللہ کا کتنا بڑا والدین کا. اور دیکھو پھر اس کے بعد جب ہماری پیدائش ہوتی ہے تو ایک ماں ہمارے لیے کتنی تکلیف اٹھاتی ہے. وہ سنے ہو لوگ نا نظم, وہ ہے جو جھوٹ بول کر بھی کہاں جائے گی؟ جنت میں جائے گی. جھوٹ بول کر ماں جنت میں جائے گی. 2 روٹی ہے, کیا ہے؟ 2 روٹی ہے, گھر میں کچھ نہیں ہے, 2 روٹی ہے صرف, سمجھ گئے, صرف 2 روٹی ہے, بھوک لگی ہے,
देख रही है माँ की सिर्फ घर में क्या है, 2 ही रोटी है। अब मेरा बेटा को या मेरी बेटी को क्या भूख लगी है, अब मेरा बेटा या बेटी 2 रोटी खाते हैं, तो अब वो माँ क्या करती है, दोनों रोटी अपने बेटा या बेटी को, अपने औलाद को दे देती है। औलाद पूछता है कि माँ अपने लिए क्या रखी है, तो वो कोई बहाना ऐसा बना देती है कि उसको तसल्ली हो जाए कि घर में कुछ और भी रोटी है, समझ गए। तो अपने भूखे सोना गवारा करती है, लेकिन माँ अपने बेटा को भूखा सोना गवारा, ये भूखा रहना गवारा नहीं करती है, पसंद नहीं करती है, समझ गए। जब हम लोग छोटे थे और हर बच्चा जब छोटा होता है तो क्या करता है, बिस्तर पर फलिया पे क्या करता है, पेशाब कर देता है। उस भीगे हुए बिस्तर पर माँ सोती है, अपने बच्चे को, अपनी औलाद को सूखे हुए बिस्तर पर क्या करती है, सुलाती है, जबकि जानती है कि ठंडी का मौसम है, मैं सोऊंगा तबीयत हमारी ख़राब हो जाएगी, सर्दी खांसी जुकाम हो जाएगा। उसके बावजूद भी माँ क्या करती है, अपने तकलीफ़ को बर्दाश्त करती है, लेकिन अपनी औलाद के ऊपर तकलीफ़ आने नहीं देती है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो लोग माँ की इताअत कर ले, और माँ का हक तो कोई अदा नहीं कर सकता है, समझ गए, माँ का हक कोई अदा नहीं कर सकता है। अगर तुम यहाँ से अपने घर से तुम खाने काबा मक्का मदीना जाओ, समझ गए, और कंधा पर बैठा कर अपने माँ बाप को लेकर जाओ और पूरा तवाफ़ करा दो, 7 चक्कर लगा दो खाने काबा के, तो उस वक़्त भी तुम एक हक अदा नहीं करोगे। जानते हो किस चीज़ के, जब हमारी पैदाइश हुई थी और पैदाइश के वक्त जो माँ को जो तकलीफ़ हुई थी, उस तकलीफ़ के एक आह जो होती है, उस आह के भी हम बदला अदा नहीं कर सकते हैं। और एक किताब में आता है कि जब हम पैदा होने वाले थे तो बच्चे पेट में चलते हैं ना, बच्चे पाँव वगैरह मारते, तो जो हमने पाँव मारा था माँ के ये में पेट में, उस एक पाँव के मारने का हक भी हम अदा नहीं कर सकते हैं। ये है माँ और बाप के वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, कि अपने माँ और बाप के साथ अल्लाह की इबादत जब कर लो तो अपने माँ और बाप के साथ अच्छा सलूक करो, हुस्न सलूक करो। और वला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा, कि माँ और बाप को झिड़को नहीं, बिल्को नहीं कि बा का चिल्लात रहले, बका बका का करत रहले, बा चुप रहना, इस तरीके से बोलो मत। उनसे जब बात करो तो नरमी के साथ बात करो, उनके लिए दुआएं करो, समझ गए, उनके लिए क्या करो, दुआएं करो कि अल्लाह, एक वक्त ऐसा था कि हम मोहताज थे, हमारे वालिदैन के साथ आप नरमी का मामला फरमाइए, इन्हें सेहत दीजिए, इन्हें लंबी उम्र दीजिए, इनकी साया को हमारी ज़िंदगी में बहुत देर तक कायम और दायम रखिए। और जिनके वालिदैन नहीं है, माँ और बाप नहीं है, या माँ और बाप में से कोई एक गुजर गया है, तो उनके लिए हम लोग दुआ करें कि अल्लाह, हमारे माँ नहीं है, हमारे बाप नहीं है, अल्लाह वो लोग दुनिया से गुजर चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके साथ नरमी का मामला फरमा, उनके गुनाहों को माफ़ फरमा, उनकी क़ब्रों को नूर से पुरनूर फरमा। देखो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 55 साल की उम्र थी, कितने साल की उम्र थी, 55 साल की उम्र थी। एक मरतबा मस्जिद नबवी में आए, और आने के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इसी तरीके से सहाबा बैठे हुए थे। हुज़ूर फरमाने लगे कि नहीं, हुज़ूर रोने लगे। हुज़ूर क्या करने लगे, रोने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह क्यों रो रहे हैं, या रसूलल्लाह क्यों रो रहे हैं, वजह क्या है रोने की। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उज़कुरु अम्मी लैता उम्मी हय्या, कि काश के मेरी उम्मी, ये काश के मेरी माँ, मेरी अम्मी जान, मेरी वालिदा मुहतरमा ज़िंदा होती, समझ गए। तो इंसान माँ के कदर उस वक़्त होगा जब माँ हमारी दुनिया से चली जाएगी, तब, समझ गए। इसलिए जिनकी माँ है, बाप हैं, उनकी खिदमत करें और उनको राज़ी कर लें, उनके पैर में अपने आप को डाल दें, उनके कदमों के तले गिर जाएं और उनसे माफ़ी मांगें कि ऐ मेरी माँ, ऐ मेरे बाप, आज की रात बहुत ही मुबारक रात है। अगर हमसे कोई गलती हुई हो, कोई गुनाह हुआ हो, कोई ख़ता हुआ हो, कोई आपके हुक्म के ख़िलाफ़ हमने कोई काम किया हो, तो आप हमें क्या कीजिए, माफ़ कर दीजिए। अगर आप माफ़ कर दीजिएगा तो हमारी अल्लाह भी हमसे राज़ी हो जाएंगे, और हमारी आज की रात में दुआएं भी कबूल हो जाएगी, और अल्लाह हमें मग़फ़िरत भी कर देगा। एक सहाबी थे, एक क्या थे, सहाबी थे। सहाबी का इंतकाल होने लगा। क्या होने लगा, इंतकाल होने लगा। तो कलिमा ज़बान पे नहीं आ रहा था, मरने के वक्त कलिमा ज़बान पर नहीं आ रहा, तो सारे के सारे लोग परेशान थे। क्या थे, परेशान थे। अब भागे भागे लोग आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि वो बड़ी तकलीफ़ में है, जान निकल नहीं रही है, बड़ी तकलीफ़ में है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर भेजते हैं कि जाइए
मामला की तफ्तीश करके आइए, छानबीन करके आइए कि क्या है माजरा, क्या है मामला, क्या है। जाते हैं, जाने के बाद वहाँ से देख कर आते हैं तो सारी बात बताते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि क्या उनकी वालिदा है, क्या उनकी माँ हयात से है, जिंदा है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया जाता है कि हाँ है। फिर उनकी माँ को बुलाया जाता है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं उनकी माँ को और कहते हैं कि आपका बेटा कैसा है? तो फरमाती है उनकी माँ कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है, नेक है, साले है, दीनदार है, नमाजों की पाबंदी करने वाला है, तिलावत कलामुल्लाह करता है, नफल नमाजें पढ़ता है, बहुत अच्छा है, लोगों के साथ भी मामला अच्छा है। कहा कि सब कुछ एक तरफ, आपके बेटे का आपके साथ कैसा मामला है, आपके बेटे का आपके साथ उसका मामला कैसा है? नमाज रोजा सब ठीक है, लेकिन आप उससे खुश हैं या नहीं है? तो माँ फरमाती है, माँ कहने लगती है कि नहीं, मैं उससे खुश नहीं हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आप उन्हें क्या कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। अगर आप माफ़ नहीं कीजिएगा तो मैं लोगों को, सहाबा को हुक्म दूंगा कि वो लकड़ियाँ जमा करे और उस लकड़ी पर क्या करूँगा, आपके नज़रों के सामने उससे मैं जलाऊंगा, ताकि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा दे और उसके गुनाहों की कफ़ारा इस दुनिया के अंदर ही हो जाए, यहाँ से पाक साफ बन कर जाए अल्लाह के दरबार में। माँ होती है। माँ ये बात सुनकर, हुजूर की ये बात सुनकर क्या होती है, मचल जाती है, तड़प जाती है, बेचैन और बेकरार हो जाती है। कहती है कि या रसूलल्लाह, आप ऐसा हरगिज़ मत कीजिए। मैं अपने बेटे को, अपने लख्ते जिगर को, अपने लाडले को मैं माफ़ करने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। फ़ौरन वो क्या होती है, माफ़ कर देती है। और इधर माँ माफ़ करती है उनके गुनाहों को, गलतियों को, और उधर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या है कि उधर उस सहाबी को कलिमा नसीब होता है और वो निकल जाती है। समझ गए? इसलिए जिनकी माँ है वो बड़ी खुश नसीब हैं कि अल्लाह ने माँ को हयात से रखा है। इसलिए अपनी माँ और बाप की क्या करें, बातों को माने। समझ गए? एक बुज़ुर्ग आदमी थे, साजिद, एक बुजुर्ग आदमी थे, वो कब्रिस्तान से क्या हो रहे थे, गुजर रहे थे। कब्रिस्तान से क्या हो रहे थे, गुजर रहे थे। तो एक कब्र से आवाज़ आ रही थी गधे की। किसकी आवाज़ आ रही थी? गधे की। बड़ी परेशान हुई कि कब्र से आवाज़ आ रही है गधे की, क्या बात है? तो उस मामले की तफ्तीश के लिए वो गांव करीब में, कब्रिस्तान के करीब में एक बस्ती, उस बस्ती के अंदर तशरीफ़ ले गए। तो वहाँ जाने के बाद मालूम किया तो पता चला कि ये उस आदमी की कब्र है, ये उस आदमी की कब्र है जो आदमी दुनिया में जब था, जब जिंदा था, तो उसकी माँ जब उसे कोई बात कहती थी, कोई काम कहती थी, कोई चीज़ करने के लिए कहती थी, तो वो अपनी माँ को डांटा करता था और कहा करता था तो कि क्या तू गधे की तरह चिल्लाते रहती है, तो क्या गधे की तरह तू चिल्लाती रहती है। अल्लाह ने उसे ये अजाब दिया कि उसके कब्र से गधे की आवाज़ आ रही है। इसलिए इस रात में आने से पहले, इस रात में दाखिल होने से पहले और इस रात के आने से पहले जो हम लोग गुनाह किए हों या ख़ताएँ किए हों, उन तमाम गुनाहों और ख़ताओं से हम लोग तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें।